ओके लेट्स स्टार्ट। तो अच्छी बा लॉकडाउन पर्यंत रोहित एट सॉरी जरा क्वेश्चन लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ सवाल यहाँ पर। x इज इक्वल टू, ये क्या है, हाँ गॉट इट। x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a टू द पावर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स t, और y कितना दे रखा है, रूट ओवर ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। और सवाल में क्या दे रखा है, शो दैट और फिर प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स, ये हमें दिखाना है। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हियर माइनस एक्स, आ गया था। यस, here x has been expressed in terms of a third variable t, y has also been expressed in terms of a third variable t, right? X and y are linked to each other through this third variable t, right? X and y are related to each other through this third variable t. Got it? Okay, so this is in parametric form. So in order to find dy by dx, we need to find dy by dt and dx by dt, because dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. So first we need to find dy by dt, then you need to find dx by dt, and then dt by dx will be equal to 1 by dx by dt. Got it? Okay. Okay. So what is your y? Y is equal to root over of a to the power what? Cos inverse t, right? Okay. Now in order to make it simple, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। To make it simple, just to make it simple, okay, only to make it simple, let me square both sides. So y square will be equal to what? A to the power cos inverse t. Now taking derivative on both sides with respect to t, taking derivative on both sides with respect to t. Got it or not? Sorry, यस सर। a to the power cos inverse. Okay. Okay. So now here chain rule will be applied. Derivative of y square is 2y into dy by dt, right? Y is a function of t. Chain rule will be applied, right? First there यस is सर। square function, then there is another function of t, which is y itself. Chain rule will be applied. First is square function, then comes y function. Okay, so chain rule. First square function derivative, then derivative of y. Chain rule, remember. Okay. Then on this side, remember, consider this x for the time being. थोड़ी देर के लिए इसको x पकड़ लो, तो क्या लिखा है, a to the power x. a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, a to the power x log a. लॉग है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a to the power x, मतलब a to the power cos inverse t into log a. तो लॉग ये सर। फिर जिसको आप x पकड़े हो उसका डेरिवेटिव, cos inverse t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना? ओके, तो फाइनली ये क्या आया, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a cos inverse t log a into what is the derivative of cos inverse t with respect to t? Minus 1 by root over of 1 minus t square, isn't it? Okay. यस सर। Then what is dy by dt? dy by dt is equal to वाई पर a to the power cos inverse t into log a
माइनस आगे ले आता हूँ, डिवाइडेड बाई हाँ 2i रूट into ओवर root 1 over 1 minus t square. Right? Right or not? Okay. Now what is your x? X is equal to root over of a to the power sin inverse, right? Sin inverse. Sin inverse t. Again, to make it simple, let's square both sides. X square will be equal to what? ए म्यूट करो म्यूट करो। हाँ, एक्स स्क्वायर भी इक्वल टू व्हाट? ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट स्क्वायर फंक्शन, then x function, chain rule will be applied. First here, first square function, then 2x x function. X is a function of t here, remember, x is a function of t here, remember. So 2x into dx by dt. dx by dt, chain rule, remember. Now consider this x for the time being. What is it in here? A to the power x, whose derivative is log a to the power x log a. into derivative of sin inverse t. Yes, that means a to the power sin inverse t into log a. देन किसको आप x पकड़े थे? sin inverse t को x पकड़े थे, उसका डेरिवेटिव sin inverse ओके। फाइनली व्हाट यू गेट? dx 2x into dx by dt is equal to a to the power sin inverse t into log a into what is derivative of sin inverse t with respect to t? 1 by root over of 1 1 minus t square. 1 minus t square. Okay. Then finally what is dx by dt? dx by dt is equal to a sin inverse t into log a divided by Divided by 2x 2x into root over of 1 minus t square. Guys, just 1 minute, 1 minute. Hello? सेट चैप्टर सॉरी के ट्रिगोनोमेट्री का चलिए ट्रिगोनोमेट्री सेकंड चैप्टर नहीं ट्रिगोनोमेट्री सेट पर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 सॉरी की रही था गोटे काम कर तुम ग्रुप रे जॉइन कर सारे मैथ ग्रुप रे अच्छा ताधरे गोटे देख गोटे पिला अच्छी सेक्शन ए रे कोथरे तुमको जॉइन कराला नहीं नहीं तुम को सेक्शन में जॉइन होला सेक्शन ए ना सेक्शन बी ना सेक्शन सी ए रे जॉइन हिच तो बस ए रे तुम जेकोसी गोटे पिला है धर आयुसी हो ना आयुसी नुह विश्व विश्व विश्वजित गोटे पिला थी ता नाटा लिखाई तो साइड रे तुम ता ना सेव कर नथो ताले ता नाटा एमते विश्वजित लिखाई थी से जो ये रे देखो माने पार्टिसिपेंट जो मानस अछंती विश्वजित हो बा कौन गोटे जेकोसी गोटे पिला को है कि फोन करी ताको कह मत ट्रिगोनोमेट्री जब सर पढ़े तार वीडियो लिंक गुड़ा मत दियो देखी है मुझे गोटे क्लास रे अच्छी क्लास सरीगला मुझे तुमको कहूँ है हाँ हाँ ठीक हेलो सर हाँ हेलो सर आप सर आमको जो लिंक देना तो सही लिंक रे सही अकाउंट रे तो 11 संग रछ ना हाँ 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 सर आम लिंक गोटे दे दियंतु से ताजे 11 सब खुजी देखियो तुम लिंक टा दे देले सिया पाइबोनी पाबो ओके से आपण से नुआ छ होदे हाँ बा सर सेट सदन तो आपण फास्ट आरो एकुरो अछि सी प्राय मु मेन प्ले लिस्ट ठीक रे करनी आबे प्रॉब्लम
देखिए ओके, so dx by dt is this, then what is dt by dx? 2x into root over of 1 minus t square divided by a to the power sin A inverse sin t inverse t into log. Okay, okay, so but we need to find dy by dx. Yes sir. So dy by dx will be equal to what? dy by dt Into dt by dx. into dt by dx. Now what is dy by dt? Let's find out what is dy by dt. dy by A dt cos inverse log A divided by 2y minus a power minus cos inverse t into log a minus, yes, remember, तो dy by dt क्या था हमारा? माइनस a to the power cos inverse t into log a divided by 2y into root over of, I think क्या था root over के नीचे 1 minus t square, 1 minus t square into what is dt by dx. यहाँ पर देख लो dt by dx क्या है, ये है, ऊपर देखो लिखा है 2x into root over of 1 minus t square divided by a to the power sin inverse t into log. ओके, और हमें चाहिए क्या आंसर में? चेक कर लो क्या चाहिए हमें, प्रूव क्या करना है, इज इक्वल टू क्या दिखाना है सर माइनस y बाई माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 काट लेते हैं, 2 कट गया, ये टर्म कट गया, लॉग ए टर्म कट गया, है ना। ओके, बस लॉग ए टर्म जाने के बाद बचता क्या है पहले देखते हैं, क्या बचता है? माइनस ए कॉस इनवर्स टी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू वाई। प्रूफ कोड गला, रुको। अच्छा बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए याद करो, आपका ओरिजिनली आपका x क्या था बेटा? ओरिजिनली आपका x क्या था? रूट ओवर ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t था, मतलब x स्क्वायर क्या है? a टू दी पावर साइन इनवर्स t, है ना। तो ये जो लिखा है नीचे, जो लिखा है a टू दी पावर साइन इनवर्स t, उसके जगह में x स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूँ। यस सर। ओके, और बेटा आपका y क्या था? रूट ओवर ऑफ a टू दी पावर cos इनवर्स t, तो y स्क्वायर क्या होगा? खाली a टू दी पावर cos इनवर्स t। अभी a टू दी पावर cos इनवर्स t के जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? y स्क्वायर यस सर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अभी देखो, एक x नीचे x कट गया, एक y यहाँ पर कट गया, तो बचा क्या आपका? माइनस वाई बाई एक्स बचा, है ना। गॉट इट? यस सर। ओके, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। यस, अरे इतना छोटा हो गया। अच्छा, आधा करके ले जाओ, चलो तो याद है तो हाँ ठीक है, ले जाओ तो इतना काफी है, ले जाओ। dx का dt मिल गया तो खुद कर लेंगे। सीरीज कॉम्प्लीमेंट, 1 सेकंड, कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। बाकी का ले Yes, जाओ, sir. बाकी का ले जाओ, ले गए? ओके यस सर। ओके, ठीक। अच्छा सुनो, सपोज आपका फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप सबको पता है, व्हाट इज इट? a टू दी पावर a x to the power x log a लॉग है। अब इसका डेरिवेटिव अगर आपको बोला जाए कि प्रूव करो, है ना, अगर आपको बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव आपको प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे इसका डेरिवेटिव प्रूव करेंगे? यस, डेरिवेटिव इसका इतना है, किससे प्रूव किया जाएगा? तो शायद दो साइड में लॉग लिया जाएगा शायद। यस, दो साइड में लॉग लेकर कर सकते हो, एक मेथड।
बेटा अगर दो साइड में log ले जाते हैं तो log y कितना हो जाएगा, log a टू दी पावर ए x, टू द एक्स। और बेटा ये x इधर आ जाएगा, x log a हो यस जाएगा। सर। बस दैट मीन्स log y इज इक्वल टू x log a। yes sir। ओके, याद रखो log a इज ए कांस्टेंट, राइट, log a इज ए कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले जाऊं विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x x log a log a। विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी देखो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, पहले लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के बाद और एक फंक्शन है y जो कि x का एक फंक्शन है, चेन रूल। 1 by y into dy by dx। dx। तो 1 by y इंटू dy by dx। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, yes sir। यस सर। ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल log a कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट, log a इज ए कांस्टेंट, हाँ तो yes sir। log a को बाहर कर दो, बाहर करने के बाद क्या बचता है, dx by dx, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x which is 1, राइट, सो इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू क्या है बेटे, log a। log a। a। तो फाइनली आपका dy by dx कितना आया, ये y इस तरफ सर y log a। into log y a। इंटू log, y और आपका into y log क्या a है, to the a x। टू दी a to the पावर, x। गॉट इट। यस सर। yes sir। तो और एक प्रोसेस भी है। हाँ दिखाता हूँ बेटा, मेथड 2 देखो बेटा, मेथड 2 में मैंने जो पढ़ाऊंगा अभी समझाया था ऑलरेडी कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ये आपको ऑलरेडी मैं समझाया था। देखो बेटे, मैंने आपको बोला था कि लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, yes। ये मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो, सपोज मैं दो फंक्शन ऐसे रख रहा हूँ, ऊपर का बोल रहा हूँ लॉगरिथम फंक्शन और नीचे रख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, गॉट इट। चलो मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ, साइड बाय साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, सपोज बेटा एक फंक्शन f ऑफ x और उसके बाद एक फंक्शन f इनवर्स x, मेरे बात समझ रहे हो? ओके, सपोज f ऑफ x को आप एक इनपुट दिए, कुछ भी दिए, सपोज आप 2 दिए, ठीक है ना, इसको 2 दिए, तो ये फंक्शन क्या आउटपुट देगा, f ऑफ 2, उसका आउटपुट देगा f ऑफ 2। अभी f इनवर्स x का काम क्या है कि वो फंक्शन जो किया है उसको अनडू कर देगा, अनडू मतलब समझ रहे हो, जो किया है उसको रिवर्स कर देगा, ये रिवर्स कर दे, मतलब f ऑफ 2 से 2 निकाल के देगा। मेरा बात समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे को अनडू करते हैं, दीज टू फंक्शंस दे अनडू ईच अदर, ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स दे अनडू ईच अदर्स वर्क। ओके, तो देखो बेटे, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन का इनपुट उसका इनवर्स का आउटपुट होता है। देख लो, f ऑफ x का इनपुट कौन है, 2, f इनवर्स x का आउटपुट कौन है, 2, f ऑफ x का इनपुट f इनवर्स x का आउटपुट के साथ बराबर है। और बेटे देखो, f ऑफ x का जो आउटपुट वो कौन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ f ऑफ x, f ऑफ 2, वो उसका इनवर्स का क्या है, इनपुट है। बराबर देख रहे हो? एक फंक्शन का आउटपुट उसका इनवर्स का इनपुट और उस फंक्शन का इनपुट उसका इनवर्स का आउटपुट, है ना। और आप ऐसे भी समझ लो, एक दूसरे को अनडू कर देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अनडू कर देते हैं, है ना। बस 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 उसी तरह बेटे लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, यहाँ पर बेस आपका ई है, बेस यहाँ पर कैलकुलस है, तो लॉग एक्स लिखा हुआ मतलब बेस ई। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को 2 देता हूँ इनपुट में, यह आपको आउटपुट में देगा log 2, उसका log करके देगा।
तो अगर ये इसका इन्वर्स है तो इसको अंडू कर देगा, मतलब वही 2 दे देगा। अरे वही 2 दे देगा, मेरा बात समझ रहे हो ना, वही 2 दे देगा। यस सर। यस बस सर। बस बस वही 2 दे देगा, अंडू कर देगा। अभी एक्चुअली ये करेगा क्या, देखो ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका काम है जो भी इनपुट दो ये ई का पावर कर देगा, जो भी इनपुट दो ई का पावर कर देगा, है ना। जो भी उसको इनपुट दो, अगर उसको एक्स दो तो ई टू द पावर एक्स कर देगा। तो आप उसको log 2 दिए तो वो क्या करेगा, ई टू द पावर log 2 करेगा, है ना। ई का पावर log 2 कर देगा, जो भी इनपुट दोगे वो करेगा, व्हिच इज इक्वल टू 2। अरे बेटे समझ रहे हो, हेलो, यस सर। गॉट इट। बस ये तो था लेमैन टर्म में मैंने समझाया, और इसको प्रूव भी हम किए थे ना, इसको प्रूव भी किए थे कि बेटे देखो ई टू द पावर log 2 इज इक्वल टू 2, रिमेंबर व्हाई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं उसको नीचे करता हूं, ध्यान दो बेटे जो बोल रहा हूं कि ई टू द पावर log x इज इक्वल टू x। कैसे बेटे, थोड़ी देर के लिए ये जो लिखा है जो log x, थोड़ी देर के लिए log x को पकड़ लो, सपोज t, लेट log x इज इक्वल टू t। अभी log x का बेस क्या है, e है। log x का बेस क्या है बेटे, e है, मतलब पता e है ना, e। यस सर। इसका मतलब e टू द पावर t इज इक्वल टू x, यही तो है ना लॉगरिथम फंक्शन, यही तो है ना लॉगरिथम फंक्शन। log बेस yes, 2 sir. 8 इज इक्वल टू 3, Yes, sir. 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, और बेटे t आपका है क्या, एक्चुअली t आपका है क्या, log x है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर t को रिप्लेस करके log x लिख देता हूँ, तो प्रूव हो गया e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। यस सर। बेटे प्रूव हो गया, यस सर। ओके। तो ये तो था ऐसे प्रूव करना, और ऑर्डिनरीली आप इसको समझने के लिए ये वाला प्रूफ समझ सकते हो। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अंडू कर देंगे, एक दूसरे को अंडू कर देंगे। आप क्या किए पहले, अनुभव सबुठे इतना log वाला। यस सुनो मेरे बात पहले सुनो। पहले आप x किसको दिए, लॉगरिथम फंक्शन को खिलाए, लॉगरिथम खाएगा, उसको खा के वो जो निकालेगा उसको कौन लेगा, e टू द पावर x फंक्शन। देखो बेटे यहाँ पर ये एक कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। पहले इनपुट आप लॉगरिथम को देते हो, फिर लॉगरिथम जो आउटपुट देता है, पहले इनपुट आप दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, पहला फंक्शन, इसको आप इनपुट एक्स देते हो तो ये आउटपुट आपको log x देता है, उसका log करके देता है, उसका काम है जो भी इनपुट दोगे उसका log करके देता है। उसके बाद आपका बैठा है g ऑफ x, जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका काम है जो भी उसको इनपुट दो e का पावर कर देगा, तो इसको आप log x दिए, वो e का पावर कर देगा, e का पावर log x। तो फाइनली आपको देख रहे हो, आप इनपुट x दिया, आपका आउटपुट में e टू द पावर log x। और ये दो फंक्शन एक दूसरे को अंडू कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे को अंडू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये g ऑफ x आपको क्या आउटपुट देगा, वही x दे देगा, है ना, वही x दे देगा। मेरा बात समझ रहे हो, अरे समझे, यस सर। हाँ गॉट इट, ओके। लॉगरिथम फंक्शन x को कन्वर्ट करके जो भी करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कन्वर्ट करके ओरिजिनल वर्जन में ले आएगा जो पहले था। ओके, यही उनका काम है भाई। बिल्कुल उसी तरह एक्सपोनेंशियल, मैंने बोला ना दोनों फंक्शन एक दूसरे को इन्वर्स है तो दोनों एक दूसरे को अंडू करेंगे। तो सपोज आपको दिया है log e टू द पावर x, तो यहां पर दो फंक्शन है। पहले आप x को देते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आउटपुट देता है उसको देते हो लॉगरिथम फंक्शन को। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंडू कर देगा। मेरा बात समझ रहे हो, पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को x दे रहे हो, वो आपको आउटपुट दे रहा है e टू द पावर x, उसका काम है e टू द पावर कर देना। यस सर। फिर इसको दे रहे हो दूसरा फंक्शन g ऑफ x, जो कि है log x, इसका काम है जो भी इनपुट उसका log कर देना। तो क्या करेगा, या इसका इनपुट e टू द पावर x है तो उसका log कर देगा। तो एक दूसरे के क्या है,
इन्वर्स है, एक दूसरे को अंडू करते हैं। तो ये क्या करेगा, जी ऑफ एक्स क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स जो किया है उसको अंडू कर देगा। मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स को ई टू द पावर एक्स किया था, अभी ये क्या करेगा, ई टू द पावर एक्स को एक्स कर देगा। एफ ऑफ एक्स एक्स को ई टू द पावर एक्स किया था, जी ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स को एक्स कर देगा, अंडू कर देगा। तो आप इतना टेबल बना, यहाँ पे ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स का पहले आप एक्सपोनेंट किए फिर उसका लॉगरिथम किए, मतलब कुछ भी नहीं किए, एक्स। गॉट इट? ओके यस सर। ओके। उसी हिसाब से अगर मैं लगाऊं, तुम लगाओ, तो मेरा y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है। मैं इस ए टू दी पावर एक्स के जगह क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर लॉग ऑफ ए टू दी पावर एक्स, क्योंकि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ए टू दी पावर एक्स का पहले आप लॉग किए फिर एक्सपोनेंट कर दिए, मतलब कुछ किया ही नहीं। ये एक्चुअली इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, एक दूसरे को अंडू करेंगे। लॉग का काम को ई क्या कर देगा, अंडू कर देगा, है ना। गॉट इट? ओके ओके। तो बेटे अभी हम डी वाई बाई डी एक्स ले जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव थोड़ी देर के लिए ये पूरा चीज को टी पकड़ लो। क्या पकड़ लो? टी पकड़ लो। तो लिखा है ई टू दी पावर टी। अब ई टू दी पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वही ई टू दी पावर टी, मतलब ई टू दी पावर लॉग दी पावर एक्स। फिर जिसको टी पकड़े हो उसका डेरिवेटिव, किसको टी पकड़े हो, लॉग ए टू दी पावर एक्स को टी पकड़े हो, उसका डेरिवेटिव। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो आगे ई यहीं पर ही हम बदल चेंज कर देते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि इसका वैल्यू एक्चुअली में ए टू दी पावर एक्स है ना, क्योंकि ए टू दी पावर एक्स एक जो इनपुट है, ए टू दी पावर एक्स पहले आप उसका लॉग कर रहे हो, लॉग करने के बाद फिर एक्सपोनेंट कर रहे हो, मतलब एक्सपोनेंट क्या करेगा, लॉग को बदल देगा, लॉग का काम को अंडू कर देगा, वही ए टू दी पावर एक्स मिल जाएगा, है ना मेरे पास। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, थोड़ी देर के लिए इसको टी पकड़ लो, तो लिखा है log t का डेरिवेटिव होता है 1/t, 1/t, मतलब 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स। मेरे बात समझे? ओके। यस सर। फिर डेरिवेटिव ऑफ, अरे एक मिनट, अरे हे सॉरी वही कर दिया, अरे रो एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ से वही हमने कर दिया, वही गधों की तरह, वही सॉरी। हाँ बेटा देखो, ये जो एक्स है इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लॉग ए नहीं हो जाएगा, एक्स लॉग ए नहीं हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा ना। हेलो, यस सर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। ओके। हाँ तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, थोड़ी देर के लिए इसको t पकड़ लो, तो ई टू दी पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, वही ई टू दी पावर t, मतलब ई टू दी पावर एक्स लॉग है ना, वही ई टू दी पावर एक्स लॉग इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको t पकड़े हो, किसको t पकड़े हो, एक्स लॉग ए को t पकड़े हो, उसका डेरिवेटिव है ना, एक्स लॉग ए का डेरिवेटिव। ओके अब बेटा देखो, e टू दी पावर x log a एक्चुअली है क्या, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली व्हाट, a टू दी पावर x, इज इट, दिस इज एक्चुअली a टू दी पावर x। उसी को आप e टू दी पावर, देखो x को फिर यहाँ पर ले आओ, ये हो जाएगा a टू दी पावर x, e टू दी पावर log a टू दी पावर x, वही a टू दी पावर, उसी को कन्वर्ट करके किए थे ना। ओके, log a आपका कांस्टेंट है, log a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो a टू दी पावर x, सॉरी a टू दी पावर x इनटू log a। गॉट इट? हेलो, यस सर। हाँ ओके ओके ओके, हाँ यस, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, टेक द स्क्रीनशॉट, चल तो, अरे साई कौन ला, यस सर, कौन कहूँ, यस सर, सर स्क्रीनशॉट होउनो। ओके ओके ओके, so let's get to the next question. Okay.
अच्छा, इसका सारे खत्म हो गया शायद, और क्या बचा? अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकंड मुझे दो जरा, क्वेश्चन निकाल देता हूँ। ओके, यस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि गिवन दैट x to the power 1/2 into y to the power minus 1/2 plus x to the power 3/2 into y to the power minus 3/2 is equal to 0, और आपको dy by dx निकालना है। आपको क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। मेरा बात समझे? ओके, तो देखो बेटे, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या, देखो हमें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है? एक्चुअली कौन सा चीज़ हमें शुरू में कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है? पावर है ना, एक्सपोनेंट जो है वही बस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, वही बस थोड़ा इधर उधर के दिख रहे हैं। 1/2 -1/2 3/2 -3/2 वही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को उतारने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -x to the power 3/2 इंटू y to the power -3/2। बेटा समझ रहे हो ना, इस तरह में ऐड हुआ, इस तरह में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी बेटा अभी बताओ, हमें ये नीचे जो 1/2 ये सब का जो पावर फ्रैक्शन है उसको ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करने से सुधर जाएगा हालत? क्या करने सुधर जाएगा? यस, दोनों तरफ से क्या कर लेंगे? लॉग लेंगे। अरे भाई स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो और भी आसान हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना, अगर आप इसको दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लेते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या दिखेगा? x इंटू वाई टू दी पावर -1 इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, चला जाएगा माइनस, x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -3। ओके ओके, अभी क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले आते हैं। लॉग, ये क्या हो जाएगा? x बाई वाई है ना, ये देखो x बाई वाई, और ये क्या है? x³ बाई वाई क्यूब, इसका लॉग, दोनों तरफ लॉग लॉग ले गए, तो इस साइड में क्या हो जाएगा बेटे? log x माइनस log y इज इक्वल टू log x³ माइनस log y, ठीक है ना? ओके, अब बेटे थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक काम करते हैं, ये 3 को इधर ले आते हैं ताकि आसान दिखेगा, बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो चैन रूल डाल के कर सकते हैं, है ना? तो log x इज इक्वल log x माइनस log y इज इक्वल टू 3 log x माइनस 3 log y। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, तो अगर ये 3 log y को इस साइड में ले आया जाए तो क्या हो जाएगा? यस, प्लस 3 log y माइनस 3 log y मतलब 2 log y, और इस log x को इधर ले आ जाएगा तो 3 log x माइनस log x 2 log x। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। ओके ओके, तो 2 कट गए है ना, बस, तो log y इज इक्वल टू log x, तो y इज इक्वल टू x, है ना? बस, तो dy बाई dx क्या होगा बेटे? दोनों तरफ डेरिवेटिव ले जाओ, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले गए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? क्या हो गया? 1। अरे समझ में आया मेरा बात? यस सर। ओके सर, रिकॉर्डेड वीडियो, ओके 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 ओके, हाँ ओके, लेट मी इरेज इट, हाँ ओके सर। बस, बाकी तो सब कर दिए थे इसका, या फिर और कोई बाकी था? ये सब कर लिए थे। अब कर लिए थे, ओके। तो फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सुनो ध्यान सुनो। सेकेंड ऑर्डर
derivatives. देखो, let f of x be a function. Suppose f of x एक function, ठीक है. Then if f of x is differentiable, if f of x is differentiable, suppose आपका जो f of x है that is differentiable. differentiable मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव निकल सकता है. if it is differentiable then its derivative which is also a function, its derivative function is equal to what, f dash x. इसको ऐसे लिखते हैं ना, f dash x. मेरे बात समझ रहे हो, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, f of x का डेरिवेटिव f dash x. now if f dash x, ये देखो ये भी एक फंक्शन है, डेरिवेटिव एक फंक्शन है, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है, कि अगर ये जो डेरिवेटिव जो आया है मतलब f dash x, ये भी खुद एक फंक्शन है. इफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, नाउ इफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये भी एक फंक्शन है तो ये भी डिफरेंशिएबल हो सकता है. इफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल देन डेरिवेटिव ऑफ f dash x is equal to f double dash x, ठीक है, f double dash x. ओके, f dash x का डेरिवेटिव f double dash x. मेरा बात समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ठीक है. रिमेंबर f double dash x is called second order derivative, second order derivative of f of x. f of x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. खाली f dash x क्या है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाले दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. गॉट इट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है. ओके, तो देखो बेटा और इसको कैसे नोटेशन लिखते हैं बेटा. देखो f डबल डैश x को आप लिख सकते हो d2y बाई dx स्क्वायर. देखो बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है. मतलब हाँ मतलब पढ़ते हैं बस, उसको रीडिंग ऐसे करते हैं. डी स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डी कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हुआ है. मेरा बात समझ रहे हो, डी कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हुआ है, इसीलिए डी स्क्वायर ना पढ़ के d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं. मेरा बात समझ रहे हो. ओके, Yes, sir. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, जो dy बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव है ना. फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, अभी उसका अगर डेरिवेटिव निकाला दैट इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस गॉट इट, ठीक है. यस सर. ओके, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि देखो तो खाली y डैश मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो डबल डैश दे दोगे तो फिर उसका डेरिवेटिव है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसको ऐसे भी लिखा जाता है y2. बेटे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 भी लिखा जाता है, y1 ऐसे, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ऐसे सारे नोटेशन में उसको लिखा जाता है. आपको जो मर्जी, आप जहाँ पर जो चाहे उसी हिसाब से लगा सकते हैं. ये सारे सेम चीज़ है, सेम नोटेशन. गॉट इट. हेलो. यस सर. ओके, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यस, 1 सेकेंड. यस, टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. यस सर. Okay. Now let's talk about the next thing. Okay. Okay, this question. There is a function y is equal to x cubed plus tan x. There is a function y is equal to x cubed plus tan x. Find d2y by dx square. मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है. तो पहले dy बाई डी एक्स चलो निकालते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले आते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर
प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? Sec square x. Sec sec square square x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वो 3x स्क्वायर और sec square x square है ये। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है ना, बस। ओके, अभी देखो बेटे, दो फंक्शन का सॉम का डेरिवेटिव क्या होता है, उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव का सॉम मतलब इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x। तो बेटे देखो यहाँ पर 3 आपका कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, फिर x स्क्वायर 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो 6x हो जाएगा, है ना, Yes, sir. प्लस। बेटे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर sec x को t पकड़ लो, sec x को t पकड़ लो, तो बस लिखा है t स्क्वायर, लिखा है, क्या लिखा है ये, t स्क्वायर। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, मतलब 2 sec x। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. फिर जिसको t पकड़े हो, किसको t पकड़े हो, sec x को t पकड़े हो, उसका डेरिवेटिव, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, तो क्या हो गया, 6x प्लस 2 sec x, Sec x sorry, into sec x. and what is the into- derivative of sec x? Sec x into tan x, right? Yes, sir. तो क्या आ गया, 6x प्लस 2 sec square x tan x, got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next question, okay? आपको एक y दे रखा है a sin x प्लस b cos x, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और उसने आपको बोला है कि प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। उसने बोला है कि प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद जाके हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी y फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, दो फंक्शन का सॉम का डेरिवेटिव, उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव का सॉम, तो ये sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अरे गॉट इट? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, a cos x माइनस b sin x। अभी फिर मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव, a बाहर कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, माइनस b बाहर कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव इज cos x, isn't it? sin x का डेरिवेटिव इज cos x। Yes, sir. ओके, तो ये बेटा क्या हो रहा है, माइनस a sin x माइनस b cos x, isn't it? Yes, sir. तो बेटे फाइनली आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले जाएं A sin x plus b तो ये cos x. sin x प्लस b cos x, एंड व्हाट इज दिस, इजंट दिस y? चेक कर लो, क्या है Yes, y sir. नहीं है, क्या है y नहीं है, चेक कर लो। Yeah. ओके, देयरफॉर d स्क्वायर y, सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Take the screenshot. Done. Okay. हाँ यस, क्या कौन बोल रहे Not done, sir. Not done. नॉट डन? ओके, डन। Yes, sir. Done, sir. ओके, लेट मी इरेज इट। ओके,
और ये लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि मेरे उसके बाद और एक क्लास है। लास्ट क्वेश्चन बस करेंगे, एग्जाम्पल 40 है। ओके Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल 40 बाद में करेंगे, एग्जाम्पल 41 पहले करते हैं। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है बेटे, देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर Into d2y by dx square इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर minus माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। गॉट इट, इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ओके बेटे देखो, ये क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसमें मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ना, रूट ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें भी होता है, तो कुछ हेल्प हो जाएगा, है ना बेटे। तो y इधर रखा है तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल दो। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, यस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इजंट इट। Okay, then let's Yes. find x dy by dx. What will be x dy by dx? X dy by dx will be equal to x by root over of 1 minus x square. अभी dy by dx पता चल गया है, so let's find d2y by dx square, मतलब इस चीज का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटे तनिक समय के लिए इस चीज को पूरा को t पकड़ लो, तनिक समय के, है ना, तनिक समय का t पकड़। 1 बाई टी का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था चिल्ला चिल्ला के, क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर। minus 1 by t square क्या होता है बेटे, -1 बाई टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कि -1 बाई टी स्क्वायर, है ना। तो आप इस पूरा चीज को t पकड़े हो ना, ये पूरा का पूरा को t पकड़ दिए, तो इसका स्क्वायर है ना, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा बात समझे हो, हेल्प। Yes, sir. ओके, फिर जिसको t पकड़े हो उसका डेरिवेटिव, किसको t पकड़े हो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पकड़े हो तो उसका डेरिवेटिव। 1 by 2 root over of minus x. ओके, अरे सब समझ रहे हो कि नहीं, हेलो। Yes, sir. ओके, थोड़ी देर के लिए इसको t पकड़ लो, और मैंने बताया था कि रूट ओवर ऑफ t का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट टी, तो ये सिंपली हो जाएगा -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से है, बस 1 बाई 2 रूट टी, और t क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जिसको t पकड़े हो उसका डेरिवेटिव, किसको t पकड़े हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो उसका डेरिवेटिव, है ना बेटा। Yes, sir. तो फाइनली इसको मैं, ये अलग है, फाइनली ये आ गया -1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बेटे इसका डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर देखो दो फंक्शन का डिफरेंस का डेरिवेटिव, मतलब 1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अभी 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये फाइनली हो गया -2x, ऊपर है -2x और ये -1, कितना हो जाएगा +2x डिवाइडेड 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1। minus x square. अभी 2 कट गया। और बेटे आपको जो प्रूव करना है उसमें लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अरे तो निकालते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये या इसके जगह में ये डाल दिया है ना, तो ये कट गया, बचा क्या x बाई रूट ओवर ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, दिस माइनस दिस है ना, दिस माइनस दिस। ओके, तो ओके पहला वाला का वैल्यू क्या आया, एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा और उसके पहले जो हम निकाले थे वो चेक कर लो क्या आया था। देखो एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था ना, कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स चेक कर लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या था, एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था कि नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर। बस बस इसका मतलब माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स, तो क्या हो गया, 0। गॉट इट। Yes, sir. Okay, take the screenshot and this much for today. Okay, ले जाओ, डन, यस Yes, ले sir. जाओ बेटा। देखो 6:30 में क्लास शुरू होता है, वहीं पर अगर आ जाओगे तो और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6:30 में Yes, sir. क्लास होता है, 6:30 में आओगे तो और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप 7 मिनट के लेट में सब पहुँचे हो, मैं 7 मिनट तो बैठा था। ओके, तो चलो थैंक यू आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, गुड डे सर।